برش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جندگنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت دروت درہبات پر بلوچ راج شرمندہ ہر جگہ ہر کجایت اشاعت و گل باتت مردر چاروں کا اگر ما بلوچستان جیڑہانی سرا یا بلوچستان راج دفتر سر چمشانگ دیں گوڑا مورا مدام یک چیزی ہر وحدہ یک چیزی مارا گندگا کہتے ہیں کہ بلوچستان ہر عہد زمانہ کا ہر وحد دورانا کہ یک جنگی اگر قصہ بوتا گوڑا مہر داستان علامہ بوتا گو بلوچستان تہا 30 سالی جنگ بلوچانی درمیان وطمہ وطب بوتگاں پا میار باہوٹ رکھے نگے ہاترا گوڑا اسی اواری گو سمو اور مستوکلیے ہوں قصہ ہوں میں دیما ای رنگوں ہمیں وڑا ہانی شاہ موری دے وڑے بعض داستانی کے بلوچستان مہر سردگاری مانزمانی کن تمہارا مہر سبق کا دا بل ہما بلوچستان کے اودا نواب اکبر خان وڑے مردمی کی ہوتی زبان پاسداری و تر کوشارنی ہما بلوچ کے وطمہ وطا وتی میار ہے وتی باہوٹ رکھے نگے ہاتر گو وطمہ وطا 30 سالی جنگ کنا وڑا ہما بلوچ مروچی وتی لوگے تہا ایک ساسا بزگن چیا ہما بلوچ وتی وانک جہانی تہا چو بیوسن چیا بلوچ مروچی ہما ریاست تا نشتہ کہ اودا آئی زہگار بان ہما اولاد کے آئیں رودینی طور مزن کن تو یونیورسٹیانی تہا بار تو اگار بان بل آرا چکے حوصلہ نیست اور چکے ہمت نیستے کہ ایک ایف آئی آر بکا بلوچے مروچی زندگی ہما جاگہ اشتا تھا کہ آوتی پریاتی گیش کرنا کہاں کسی کہ موبائل گڑی گار بھی چیزیں ایف آئی آر کہاں بل بلوچانی زہگ گار بان آ تانہا یا کہ سرکار کر رہی تھی عرضی نبشتہ کرنا کنا چیئے کہ آئینی اوستر امید چا سرکار ہمیں وڑا شتا اور پرشتا وڑا انو بلوچ کئی کر ربرو کجا ہوتی پریاتا ببا کئی کر رہی ہوتی ارضا بگواری جاگئے چارہ وانک جہانی تہیں جاگئے لوگانی تہیں ہمیں وڑے قصہ ہر کسانی تہاستان بلوچے بلے مروچی ما گپنا گو بانک حسیبہ کمبرانی ہے کہ آئیک بلوچ زالبولی بلوچ جنکیہ قصہ ہیں کہ آئی عمر ہمیشہ کے یہ دمانگا آئی یونیورسٹیانی تہاں نو در پر یا کہ وانک جہانی تہا بوتے ہیں بلے انو مگندہ کہ مدام کوٹ و کچہریاں نے مدام کیمپانے مدام دگانی سر پروٹسٹائیں یا کہ عدالتہ نے دیما یا کجا سرکاری مردوں میں کہتے ہیں حسیبہ گونتی بینراں یا کہ حسیبہ ہما امبراہ کے کیمپانی تنشتگاں وتی براسانی وتی کسانی پریاتے واسطہ گوننگوں حسیبہ ویلکم کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ جی میں ٹھیک ٹھاک بہت شکریہ. اچھا میرے پاس شاید میں نے آپ کو بلایا اس لیے کہ باتیں میں نے کی تو میں یہ شاید میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کیا پوچھوں میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں یا کچھ کہوں مگر آپ ایک سمبل ہیں بلوچ قوم کی سمبل ہیں ایک بیٹی کی سمبل ہیں ابھی آپ کو سارے سن رہے ہیں وہ بلوچ جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے وہ بلوچ جو پارلیمنٹ میں ہے وہ بھی سن رہا ہے وہ جو فوج میں کام کر رہا ہے یا وہ اینٹی فوج ہے ہیومن رائٹس میں ہے جہاں بھی ہے وہ آپ کو سن رہے ہیں ایز اے سمبل ایز اے بلوچ قوم کی بیٹی تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک سمبل نہیں ہوں میں مجبور ہوں اور یہ مجبوری مجھے یہاں نکال کر لے کے آئی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے جو بھائی ہیں آپ انہیں واپس لوٹا دیجئے انہیں بازیاب کیا جائے. میرے بھائی بے گناہ ہے اور اس طرح سے دیگر جتنے بھی ہزاروں لوگ لاپتہ کر دیے جا چکے ہیں یا گمشدہ کیے گئے ہیں ان کو بھی بازیاب کیا جائے. ہم آئین کو ماننے والے ہیں لوگ ہیں ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو جب بھی غائب کر دیتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ عدالت ان پر کوئی بھی جرم ثابت نہیں کر پاتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہوتا اس لیے آپ انہیں لاپتہ کر دیتے ہیں. تو میرا بھائی جو گمشدہ ہے یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان میں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں تمام تر لوگوں سے کہ یہ ایک تسلسل ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. یہ پچھلے کئی دہائیوں سے بلوچستان میں ہوتا آ رہا ہے. بلوچستان میں آپ کو جبری
बलूचिस्तान में आपको इज्तिमाई जो लाशें मिली हैं, बलूचिस्तान में आपको इज्तिमाई कब्रें मिली हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, मैं सिर्फ असान का हवाला नहीं दे रही आपको, मैं सिर्फ अपना हवाला नहीं दे रही। मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपको अगर अपनी आवाज़ पहुँचा रही हूँ तो मैं बलूचिस्तान का हवाला आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे घर हैं। अली असगर बंगुरज़ई की अगर मैं बात करूँ जो पिछले 20 साल से लापता है। मैं जाकिर मजीद की बात करूँ जिनकी वालिदा पिछले 11 साल से अपने बच्चे के इंतज़ार में बैठी है। मैं सम्मी दीन मोहम्मद की बात करूँ कि जो 11 साल से अपने बाप के इंतज़ार में बैठी है। वो कमसिन बच्चियाँ एहतजाज करते करते जवान हो गई। मैं राशिद हुसैन की बात करूं जिनकी वालिदा कई महीनों से दर बदर भटकती है, कभी कराची, कभी कोयटा, कभी इस्लामाबाद। उन्हें घर नहीं मिलता, वो किन मसाइल से दो चार होती है, वो गुजर रही है, ये वही जानती है। मैं जानजेब कंबरानी की बात करूं जो पिछले 5 साल से लापता है। मैं जान मोहम्मद की बात करूं जिनके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे अपने बाप के साए से महरूम है, जो पिछले 5 साल से लापता है। मैं बात करना चाहूंगी उन तमाम तर सियासतदानों से और अपील करना चाहूंगी कि वो सियासतदान अगर बलूचिस्तान का अख्तर मेंगल है, वो सियासतदान अगर कबायली रहनुमा महमूद खान अचकज़ई है, वो अगर मरियम नवाज साहिबा है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन दावड़ है। मैं उनसे अपील करती हूँ, मैं उन तमाम तर सियासी लीडर से अपील करती हूँ कि आप देखें बलूचिस्तान की तरफ, आप बलूचिस्तान को अपनाएं। मैं उन्हें ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान के मसलों को अपनाएं, आप इन तमाम तर लवाकिन के दर्द को अपना समझें। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि बलोचों को इतना डी-इम्यूनाइज कर दिया गया है, इतना उन्हें मतलब आखिर समझा जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनकी बात नहीं की जा रही, पाकिस्तानी मीडिया उनके लिए नहीं बोल रहा। आप देख सकते हैं कि अयात बलूच जैसे एक तालीम याफ्ता नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो तुलबा है, जो हमारी बाई है, उनको उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो तुलबा बाई है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनकी मसख लाशें फेंकी जा रही है। मैंने सियासतदानों से रुजू किया, मैंने सिक्योरिटी एहलकारों से रुजू किया, मैंने दीगर जितने भी जहाँ तक मेरी पहुँच थी, मैंने उन तमाम तर लोगों से रुजू किया। मैंने सियासतदानों से अपीलें कर कर के मैं थक गई, मैं मीडिया पर अपीलें कर कर के थक गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे इंसाफ मांगू। मुझे बताया जाए कि मैं बारहा बताती रही कि मेरा भाई दहशतगर्द नहीं है, मेरे भाई का किसी भी मसल्ला तंजीम से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई भी मुझे इंसाफ नहीं फराम कर रहा। मुझे बताया जाए कि क्या इस मुल्क में ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई अदारा है जो मुझे इंसाफ फराम करे। ये तमाम तर लवाकिन कहाँ जाए जो पिछले 20 सालों से इंसाफ के मुंतजिर है। हमें बताया जाए, मेरी तस्वीर लिए किससे इंसाफ मांगे और किधर जाके अपने प्यारों को तलाश करें। तो अब जो ये बातें कर रहे हो कि मैं ये इदारों से जी मैंने कांटेक्ट किए है या अदालत से रुजू किया है या कैंप में प्रोटेस्ट किए है, ये आप अपनी बात करें कि आपके दौरान ये कब से कर रहे हैं आप? जी, मैं ये आपको एडिशनली बताना चाहूँ कि जो मेरा एक बड़ा भाई सलमान कंबरानी और गज़ैन कंबरानी, मेरे 2 भाई, उनको साल 2015 में उठा लिया गया, गायब किया गया, जो कि दोनों तुलबा थे, और फिर साल 2016 में उनकी मसख लाशें फेंक दी गई। इस दौरान हमें एहतजाज करने से मना किया गया और हम चुप रहे। इसके बाद रवा साल दोबारा मेरे छोटे भाई एहसान कंबरानी को सिक्योरिटी एजेंसीज ने मेरे कज़न समेत लापता कर दिया और अब उन्हें मुकम्मल 9 महीने होने जा रहे हैं। मैं तब से कैंप जारी हूँ और कैंप में मैं ये एहतजाजें करती रही हूँ, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती आ रही हूँ। मुझे मुकम्मल आज तक 9 महीने हो चुके हैं जो मैं कैंप जारी। मैंने आपको पहले बोला कि ये बात हम कर रहे थे तो कि आप सिंबल हैं। मेरा मतलब ये है कि अभी बलूचिस्तान में सिर्फ आप नहीं हैं, हर घर से आप अगर देखें, हर घर से किसी न किसी दो बंदे या एक भाई, किसी का भाई, किसी का शोहर, किसी का, हर घर मुतासर है, हर जगह ही उठाए गए हैं। मगर बात यह है कि बहुत कम लोग हमारे हैं, जो मैंने ओपनिंग में ये बात की कि हमारे लोग में इतनी खौफ है कि वो एफआईआर तक नहीं कराते अपने बच्चों की। उनका डर ये है कि शायद अगर हम एफआईआर करें तो हमारे बच्चे या भाई वापस नहीं आएंगे। तो मैं आपको कहता हूं कि आप बहादुर हैं। आप बहादुर इसलिए हैं कि आप बोलती हैं, और वो सारी हमारी बहनें जो बच्चियां कैंप में हैं कितने अरसों से, सर्दियों में, गर्मियों में,
تو بشمول آپ کے وہ جو اپنے پیاروں کے پیچھے جاتے ہیں یا ناانصافی کے خلاف بولتی ہیں، وہ بہادر ہیں. اور ابھی آپ جو بول رہے ہیں اور بلوچستان میں اور زمین پہ بولنا تو آسان بھی نہیں ہے. آپ کو جو آپ اپنے جو بھائی کے لیے چیخ رہے ہیں، کوئی سیاست تو نہیں کر رہے ہیں، کسی ایکٹیوسٹ گروپ یا تنظیم سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بولنے کے پیچھے آپ کو کیا کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں سینبل نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، ہم مجبور ہیں. جب ہم نکلتے ہیں تو پیغام بھجوائے جاتے ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرائیں، آپ اپنا منہ بند رکھیں. اگر آپ کچھ بھی بولیں گی تو ان مسائل کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی. اگر آپ کچھ بولیں گی تو آپ اس نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گی. لیکن اس ہمیں دھمکی دی جاتی ہے بارہا کہ آپ کو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مسخلہ مل چکی ہے میرے بھائی کی، تو میں مجبور ہوں. میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی اگر بھائیوں کے لیے بولوں گی، اور اگر میری بولنے کی وجہ سے ان کے آنے کی امید بنتی ہو تو کیسے میں اس امید کو ختم کروں گی. میں جب عدالت جا رہی تھی تو مجھے منع کیا گیا کہ آپ عدالت نہیں جائیں. میں جب اس پی ڈی ایم کے جلسے میں جا رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے سنا جائے گا کہ نہیں سنا جائے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر جو میں بولوں گی کیا مجھے بولنے دیا جائے گا یا پھر میری آواز اٹھائی جائے گی. لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ کوشش کرتی رہی ہوں کہ کیونکہ میں بولوں. میرے جو بھائی ہے وہ لاپتہ کر دیے جا چکے ہیں، میرے پاس صرف باقی جو رہ گئی ہے وہ میری آواز ہے. اور اگر میں اس آواز سے بولوں گی اور اس میرے بولنے سے اگر کوئی زندہ بچ کے واپس آ سکتا ہے، سلامت واپس آ سکتا ہے، تو میں ضرور بولوں گی. آپ چونکہ ابھی بول رہے تھے کہ عورتیں اکثر بچیاں جو ہے نا ان کیمپوں میں نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے رہیں گے ایک سیاسی حوالے سے بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے ہمارے نکلنے سے. جب ہمارے لڑکے نکلتے ہیں، ہمارے بھائی نکلتے ہیں، یا پھر وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے ہیں، یا پھر ان کا کسی گھر میں کوئی فرد گمشدہ ہو جاتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو انہیں بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس وجہ سے کیمپوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو نکل رہی ہیں وہ بچیاں نکل رہی ہیں، مائیں نکل رہی ہیں، بہنیں نکل رہی ہیں، خاتون نکل رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں. آپ کو یہ بتانا میں چاہوں گی کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، تو یہاں پر کیونکہ ہم بلوچستان میں ہیں تو اس میں آپ کو بلوچ جو عورت ہے وہ آپ کو فرنٹ پر نظر آئے گی. وہ چاہے مسنگ پرسنس کی آواز ہے یا پھر وہ دیگر جو سوشل جو بنیادی ضروریات کے جو مسائل ہے وہاں پر آپ کو عورت نظر آئے گی. بلوچستان میں جو سیاست کا جو ایک چہرہ ہے وہ عورت ہے. وہ بلوچ عورت کا چہرہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آئے گا، کیونکہ جب مرد سیاست کرتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے اغوا کیا جاتا ہے. آج سے کئی سال پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ماما قدیر نے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ کیا تھا. اس لانگ مارچ میں ان کے ساتھ مائیں تھی، ان کے ساتھ عورتیں تھی، ان کے ساتھ بیٹیاں تھی، ان کے ساتھ بچیاں تھی، لواحقین تھے مسنگ پرسنس کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلوچ عورت کا جو کیریکٹر ہے یہ آپ کو پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو پشتون میں نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو سندھیوں میں نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو بلوچوں میں اس لیے نظر آئے گا کیونکہ بلوچستان میں بیک وقت ایک ہی گھر سے اگر 3 سے 4 مرد کو آپ اغوا کر لیتے ہیں، آپ انہیں غائب کر دیتے ہیں، تو صرف ایک آواز بچتی ہے، وہ ہوتی ہے عورت، اور وہ اس صورت نکلتی ہے اور وہ مجبوری ہوتی ہے، یا پھر آپ اسے بہادری کا نام دیں یا پھر اسے سیمبل کا نام دیں، وہ نکلتی ہے اور وہ سامنے آتی ہے. جو پہلے آپ بول رہے تھے ایک بات کہ جلسے میں آپ لوگ پی ڈی ایم کے آپ کے پاس ایک پلے کارڈ تھا، آپ نے لکھا ہوا تھا اس پہ کہ وہ پارٹی جب تک عوامی نہیں، جب تک اس مسنگ پرسن یہ کی بات نہ کرے یا وہاں تک نہ ہو. تو کیونکہ بلوچستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے میری نظر میں، بلکہ سب کی نظر میں، کہ وہ مسنگ پرسنس کا ہی ہے، کہ اتنی تعداد میں انسانوں کا اغوا ہونا یا گم ہونا یا اتنی بھاری مقدار میں اجتماعی خبریں ملنا. چونکہ بلوچستان کا جو سب سے جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں یا جو بھی پارٹی ہیں، ان لوگوں کا جو جلسے ہوئے تھے تو وہاں آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں کو اسٹیج پہ یا نمائندگی دی جائے مسنگ پرسنس کے حوالے سے. اس طرح کا کوئی ہمیں عملی اثر دکھائی نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سے میرا بھائی گمشدہ ہے میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میں نے ہر در سے مدد مانگی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری جو ہے نا آواز بھی کافی پہنچی ہے. لیکن چونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں پی ڈی ایم کے جلسے تک پہنچے اور
हमने दरख्वास्त की। जी हाँ, मेरी बात मरियम नवाज़ साहिबा से हुई और उन्होंने मुझे खुद कहा कि हम आपको टाइम देंगे, आप आएँ और अपनी बात दुनिया के सामने रखें, क्योंकि वो एक अवामी जलसा था और हम चाह रहे थे, क्योंकि ये नुमाइंदे तमाम तर वाकिफ़ हैं हमारे मसाइल से, ये जानते हैं कि इन मसाइल के पीछे कौन है। तो हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि ये एक अवामी जलसा है तो अवाम ये सुने, दुनिया ये सुने कि हम किस तरह के मसाइल से दो चार हैं, हमें किस कर्ब व अज़ियत के नाम किया गया है। फिर जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया और मेरे हवाले से बात की। फिर जाकर उन्होंने कहा कि जी टाइम कम है, चूँकि हम आपके हवाले से बात भी कर चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे ये मसाइल हल हो, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी जो तमाम तर अगर बातें मैं अवाम के सामने कर सकती थी, वो तमाम तर बातें मैंने उनसे की और उन्होंने वादा किया कि अगर मेरी हुकूमत हो तब भी मैं कोशिश करूँगी, और अगर मेरी हुकूमत नहीं भी हो तब भी मैं इस हवाले से इसमें मतलब आपकी मदद कर सकूँगी। लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि अगर ये जो रहनुमा है जिन्होंने हमारे उस पीडीएम के जलसे में में यकीन दिलाया, मेरी हौसला अफजाई की, हमारी दाद रसी की और ये बताया कि काम करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम तब समझेंगे कि वो हमारी मदद हुई है जब हमारे भाई वापस आएंगे, हम तब समझेंगे हमारी मदद हुई है जब तमाम तर लापता अफराद वापस आएंगे, हम तब समझेंगे हमारी मदद हुई है जब वो इस मसले को संजीदा लेंगे, हम तब समझेंगे हमारी मदद हुई है जब वो जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कानून पास करेंगे। क्योंकि हम नहीं देखते कि हमारी असेंबलियों में जबरी गुमशुदगियों पर बात होती है, लेकिन जिस तरह से बात होनी चाहिए वैसे नहीं होती। हालांकि पाकिस्तान का आइन हर किसी को इंसाफ का हक देता है, हर किसी को फ्री ट्रायल का हक देता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में जबरी गुमशुदगी को जुर्म नहीं बनाया गया। मैं कमीशन में भी गई और यहाँ पर जो एक कमीशन बनाया गया है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से काफ़ी नाकारा है। जब मैं कमीशन में गई तो वो मुझे बजाय हौसला देने के, वो उन्होंने बजाय मेरी मदद करने की, बजाय मुझे इंसाफ फराहम करने के, उन्होंने उल्टा मुझे ही टारगेट करके बताया कि ये बच्ची मिसिंग पर्सन्स कैंप में जाती है। तो हमें बताया जाए कि हम किस दर से इंसाफ मांगे, यानी कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर हमारी मदद हो सके, जहाँ पर इंसान की बात सुनी जाए। और ये जो मैं ये समझती हूँ कि ये जो जराइम पेशा ये जो लोग हैं, ये हमारे मुल्क के रखवाले नहीं हैं। अगर ये मुल्क के रखवाले होते तो ये अपने ही शहरियों को जिंदानों के हवाले नहीं करते, ये फिर उन्हें इंसाफ फराहम करते, ये फिर उन्हें अदालतों में पेश करते, उन्हें मंजर आम पर लेके आते। ये शायद खुद गिल्टी है, इसी वजह से उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। ज़ाहिर है आप लोगों का ताल्लुक सियासी लोगों से होगा या कि कम्युनिटी से होगा या समाज से होगा या सोशल एक्टिविस्टों से, तो कैंपों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, ये ऐसी जगहें होती हैं जो प्रोटेस्ट और इजहार करने का। एक वीडियो मैंने देखा था, आप लोग जो पीडीएम के जलसे में अख्तर मिंगल से अब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें स्टेज पे बोलने दिया जाए। एक दूसरी खातून थी, उसकी आवाज़ आ रही थी कि ऐसी बस सिर्फ 2 मिनट बोलेगी, मगर अख्तर मिंगल बोल रहा था कि मेरे इख्तियार में नहीं है। तो अगर किसी के इख्तियार में किसी को स्टेज तक ले जाने की वस ना हो, इख्तियारत ना हो, तो उससे क्या तवक्को रखी जा सकती है? ताकि पूरा आवाम में खबर बने। Gana wasati basaka dasa yesu tatama. Basanda de dafki dadi papa ke dafki dasa nda gara razi karen da ite ke. Mudda ite kas kato. देखिए, इससे पहले भी जब हमने इन तमाम तर लोगों से बात की थी, मुंतखब नुमाइंदों से बात की थी, तो हमें वो हमारी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो हमसे मिल नहीं रहे थे, वो बस यही बता रहे थे कि भाई हमने ये जो नोटिस है वो दे दिया है, हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया है, आप बस तसल्ली रखिए, हौसला रखिए। लेकिन इस हवाले से उन्होंने हमें कोई भी तसल्ली नहीं दी। जब वहाँ पर चूंकि वो एक अवामी जलसा था और अवाम हमें देख रही थी, तो इस वजह से उन्होंने बताया। फिर जब मेरी बात खुद सरदार अख्तर साहब से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा अपना भाई कई सालों से लापता है और आप सब ये जानती हैं कि
ये इनमें कौन मुलव्विस है। मैंने उन्हें कहा कि आप जब ये जानते हैं कि ये इनमें कौन मुलव्विस हैं, आप जब भी सबके सामने ये कहते हैं कि नई हुकूमतें लाने वाला कौन है, ये गवर्नमेंट को लाने वाला कौन है, तो आप ये भी एतराफ़ कीजिए कि 20 सालों से ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है। आप ये एतराफ़ क्यों नहीं करते? आप सिर्फ़ वो बात कर रहे हैं, आप इस पर कानून पास करें, आप इसके लिए कुछ करें। तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा यहाँ से जल्दी चले जाना, क्योंकि ये जलसा जो है ना जल्दी अभी ख़त्म हो जाने वाला है, फिर आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। दूसरी एक मैंने तस्वीर देखी थी कि वहाँ मरियम नवाज ने भी आपके सर पे हाथ रख के तस्वीर खींची थी, सोशल मीडिया में दिया था लोगों ने और न्यूज़ में भी दिया था। और दूसरा महमूद खान अचकज़ई का भी यही सेम जगह है, सेम पोजीशन है। और इसके अलावा सरदार अख्तर जान ने भी तुम्हारे सर पे हाथ रख के सोशल मीडिया में तस्वीर दिया था लोगों ने, मीडिया के सामने उन लोगों ने तस्वीर दिया था। तो एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये बात इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के जो वारिस हैं खुद को बोलते हैं तो यही लोग होते हैं ना। अभी अगर हम देखें कि इससे पहले जो बलूच थे नवाब अकबर खान के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा फिजा खाली है, कि अपने ही लोगों को सेफ्टी नहीं है, अपने घरों में भी लोग सेफ नहीं हैं, तालीमी इदारों में भी सेफ नहीं हैं। तो ये बात जब तस्वीर रखने की सोशल मीडिया में देने की या मीडिया में देने की, इसका मतलब ये है कि पूरे समाज में, पूरी कौम के सामने मैं ये सौगंध या हल्फन ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख रहा हूँ। सर पे हाथ रखने का मतलब ये होता है कि तुम मेरी साहिबान में हो, मैं तुम्हारा पुश्तपना हूँ या तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारा सरपरस्त हूँ। तो अगर मरियम नवाज को पता नहीं है बलूचिस्तान की रवायत का, तो महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंगल तो बेहतर जानते हैं कि इतनी बड़ी सौगंध या इतना हल्फ लेने का मानी क्या होता है। क्या वो हाथ अभी तक आपके सर पर है, आपकी ज़ाती मसलों में, घरों तक, या वहीं स्टेज तक वापस रह गई? जी, अख्तर मेंगल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इससे पहले भी, क्योंकि वो एक बलूच हैं और इस हवाले से उन्होंने इससे पहले भी इस मसले को उजागर किया था। वो शायद वो एक पहले रहनुमा है जिन्होंने इस हवाले से बात की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरी हुकूमत आती है तो मैं ज़रूर इस हवाले से आपकी मदद करूंगा। और लेकिन क्योंकि ये अमलन हमें नज़र नहीं आ रहा और आप ये कह रहे हैं कि ये ज़ाती तौर पर भी आपके घर तक आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम जब कैंप जाते हैं या फिर आपको ये पता होगा कि हज़ारों ऐसे अफ़राद हैं, हज़ारों ऐसे घराने हैं, हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं बलूचिस्तान में जिनके घरों से सारे मर्द उठा लिए गए हैं और उनकी माशी हालत निहायत ख़स्ता हो चुकी है। तो वो तमाम तर लोग, सूबाई हुकूमत ये जानती है कि उनके घर में उनका जो वाहिद कफ़ील था वो यहीं पर था, जिसको उठा लिया गया है। वो इस तक भी उनकी इमदाद नहीं कर सकते कि वो उनकी जो माशी हालत है उसको बेहतर कर सके। वो ये जानते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकते। हालाँकि स्कूलों में उनके बच्चों की इमदाद नहीं दी जाती, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरे नहीं किए जाते। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम तर लोग, ये जो बातें होती हैं, ये जो तस्वीर है, ये तमाम तर एक वो एक जलसे की हद तक था, वो एक सियासी हद तक था, वो अवाम के दिलों में उस मोहब्बत को शायद वो चाहते थे कि अवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत हो। या फिर मैं ये कहती हूँ कि जब अख्तर जान मेरे सर पर हाथ रख रहे थे, तो मुझे ये लगा कि वो ज़रूर इस हवाले से हमारी मदद करेंगे, क्योंकि लवाहिकीन से बात करते ही दौरान उनकी आंखों में आंसू भी पाए गए और हमें ये लगा कि वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, चूँकि हम ये महसूस कर रहे थे जिस कर्ब से हम गुज़रे हैं, ज़ाहिर-सी बात है मरियम साहिबा नहीं गुज़री, दीगर जितने भी कबायली रहनुमा थे वो इस कर्ब से नहीं गुज़रे। अख्तर जो सरदार अख्तर है वो एक न सिर्फ़ एक बलूच रहनुमा है बल्कि वो इस कर्ब से गुज़र भी चुके हैं। उन्हें पता है कि जब कोई घर से कोई बंदा मिस हो जाता है तो उस घर पर कयामत टूट पड़ती है, तो उस घर की जो हालत ज़ार होती है उससे वो वाकिफ़ थे। तो हम ये समझते हैं कि इस हवाले से वो हमारी अपनी हुकूमत में ज़रूर मदद करेंगे, हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जो सूबाई हुकूमत है, हमने
उनकी तरफ से कोई भी मदद इन तमाम तर लवाहिकीन के लिए नहीं आई, क्योंकि इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वालिद मिसिंग है, जिसकी वजह से जो इनकी एक बुनियादी ज़रूरत है स्कूल, वो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उसके अखराजात को पूरे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो तालीम जैसी बुनियादी जो एक ज़रूरत होती है वो उससे भी महरूम रह जाते हैं। जी, अच्छी मेरे ख्याल में ये हमारी जितने पार्टियां हैं, स्पेशली जो असम्बलियों में हैं, वो सुन रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब, आप भी सुन रहे हैं इस बच्ची की फरियाद कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी जो फरियाद क्या है। और बलूचिस्तान अभी उस जज्बाती अंदाज से या कि वो फोटो सेशन की दौर से गुजर चुका है। अभी लोगों की ज़िंदगियां इतनी सख्त हैं, इतनी अजीरन हैं कि वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए रास्ता ढूंढ रही हैं। बेशक वो घर, जिसकी जली हुई घर की पेंटिंग ड्राइंग रूम में अच्छी लगती है, मगर जिसका घर जल रहा हो उसके लिए बहुत अजियतनाक है। असीबा, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ बताओ कि इतनी जो तगदो है इनके पीछे, कैंपों में, अदालतों में, पुलिस के पीछे सारे, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उस पर कितना असर पड़ा है? मेरे जो 2 भाई थे, हमारा जो महाशी जो इनसार था वो इन्हीं 2 भाइयों पर था, के ऊपर था। लेकिन जब से वो लापता कर दिए गए हैं, मैंने मेरी तालीम छोड़ दी है और मैं जॉब कर रही हूँ। चूंकि ये बजाते खुद बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत सारी बलोच लड़कियों की कहानी है, जहाँ जब उनके घर में के सारे फर्द जो गायब कर दिए जाते हैं, तब जाकर यही जो लड़कियां होती है वो आगे बढ़ती है और अपने जो खानदान की मदद कर सकती है। कसम पसरी की जो है ना, एक आप कह सकते हैं जिंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर आप कहें कि जिनके बेटे लापता कर दिए गए हैं, जिनके जो एक वाहिद कफील आप कह सकते हैं, उनको लापता कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से इन तमाम तर घरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा होता है। ये महाशी हालत में काफी ज्यादा तंगी आ चुकी होती है, जिसकी वजह से इनकी बुनियादी जरूरियात पूरे नहीं हो पाते। न सिर्फ ये, बल्कि इसकी वजह से काफी ज्यादा अजियतों से दो चार होते हैं। इन तमाम तर लोगों को कैंप तक जाने के लिए बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है एक इलाके से, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा में लोग लापता नहीं हुए, पूरे बलूचिस्तान से, यानी आधा बलूचिस्तान आपको मिल सकता है। जो आधा बलूचिस्तान ऐसा है जो कि लापता अफराद के खानदान है उनमें, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है एक इलाके से दूसरे इलाके तक का सफर करना। उनके लिए मुश्किल होता है इन तमाम तरह अखराजात को पूरे करना। आपको मैं बताना चाहूंगी कि कैंप में एक ऐसी भी औरत आती है, एक ऐसी माँ है जो जिनके पास कैंप तक पहुंचने के लिए पैसे नहीं होते, फिर वो एक मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांग रही होती है। भीख मांगने के बाद फिर वो किराया जमा करके फिर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वो कैंप तक आती है। कैंप में ऐसी भी बहुत सारी औरतें हैं जिनके कपड़े फटे होते हैं, जिनके मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो किस खस्ता हाली में यहाँ तक आते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी माएँ हैं जो एक इलाके से दूसरे इलाके तक आती हैं और उन्हें रिहाइश के लिए जगह नहीं होती, कभी किसी दुकानदार के पास रह रही होती है, तो कभी कहीं रह रही होती है। यानी सब कुछ उनके ऊपर इन्हिसार करता है, ना तो हुकूमत उनकी मदद करता है, सूबाई हुकूमत, ना ही दीगर जो लोग होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। यानी उन्हें कई तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं, कई मसाइल पेश होते हैं। मैं खुद, अगर मैं फील्ड वर्क कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरा इन्हिसार मुझ पर ही है। अगर मैंने अपनी तालीम छोड़ी है, मैं घर चला रही हूँ, तो मेरा यहाँ से कैंप तक जाने के लिए जो किराया होता है, जो खर्चा होता है, वो सब मेरे ऊपर है। अगर मैं मामा कदीर की बात करूँ तो उन तमाम तरह अखराजात उनके ऊपर है। ऐसा कोई भी फर्द, ऐसा कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ के कैंप तक आके ये नहीं पूछता कि भाई आप यहाँ क्यों आके बैठी हैं। मैं जब मेरा जब जीआईटी हुआ, तो जीआईटी में मुझे आईजी साहब ने बताया कि आप मेरी बेटी जैसी हैं, आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है, तो आप इस उम्र में पढ़ती क्यों नहीं है, आप इन कैंपों के चक्कर क्यों लगा रही है। तो ये कहना बड़ा ही आसान होता है किसी को मशवरा देना कि भाई आप इस कैंप में सुबह से शाम तक अपना
जो वक्त है वो यहाँ क्यों गुजार रही है, लेकिन उन्हें कोई बताए तो कि ये कितना ज्यादा मुश्किल होता है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक वकील बनूं, क्योंकि ऐसा था कि मैं ये बलूचिस्तान के हालात देखती थी, मैं तफरीक देखती थी, मैं फर्क देखती थी कि दीगर जो सूबे हैं उनके हिसाब से जो मेरा जो बलूच है, जो मेरा भाई है, वो क्यों इतना ज्यादा मोहताज है, इतनी महरूमियों के शिकार है। तो मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर इनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तब हम नहीं जानते थे कि जब लोग लापता कर दिए जाते हैं तो उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम समझते थे कि लोग आके एक इंटरव्यू दे के चले जाते हैं, फिर उनका बंदा वाज़ेआब हो जाता है। हम समझते थे कि इन सब की मदद शायद हुकूमत करता है, लेकिन हमारी हुकूमत सोई हुई है। वो नहीं समझती कि इन लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना होता है, उनमें से कहीं कितने बीमार होते हैं, उनमें से किसी को किस चीज की जरूरत होती है, वो किसके सामने हाथ फैलाएंगे जब आप ही उनकी मदद नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक मतलब हमारी जो बलोच माएँ हैं वो कितनी ज्यादा मोहताज है, कितनी महरूम है। और मतलब हुकूमत भी बलोच है। ये नहीं है कि हमारी जो हुकूमत है वो कोई पश्तून है, वो कोई सिंधी है, वो कोई पंजाबी है, नहीं, वो भी बलोच है। लेकिन उनमें से आज तक कोई भी नहीं आया कि हम तक किसी के सर पर हाथ रख के नहीं, ये नहीं बोला कि अम्मा आप सुबह से शाम तक यहाँ क्यों बैठी होती हैं, आपको किसका इंतजार है, क्या आपको ऐसे किसी चीज की जरूरत है जो आपके लिए मैं आपकी खिदमत कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता ये तमाम तर दुश्वारियां यानी मिल के इकट्ठा होके क्यों किसी के पास आ जाती है। मुझे अपने लिए इतना दुख नहीं होता, मुझे दूसरों के लिए बड़ा ही दुख होता है। मैं तो फिर भी अ, एक जॉब करके अपना घर चला रही हूँ, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ रही है, लेकिन वो तमाम तर लोग जिनके घरों में एक मर्द तक बाकी नहीं रहा, जिनके बच्चे तक पढ़े लिखे नहीं, जिनकी बेटियां घर से नहीं निकली, मैं तो फिर भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं बोल रही हूँ। लेकिन उन तमाम तर लोगों का क्या, जो जिनके पास एक पाई तक नहीं, जो अपना सुबह दिन रात वो अपना कैसे गुजार रहे हैं, वो किस हालत में है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, कोई इनके हवाले से नोटिस नहीं लेता। ये लोग क्यों चुप है? मेरा सवाल इस पार्लियामेंट से है। ये इंसानी जो हकूक के जो रहनुमा है, जो उसके अलम्बरदार है, ये क्यों चुप है? इन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि ये तमाम तर लोग इतना ज्यादा इस तकलीफ से क्यों गुजर रहे हैं? इनका जुर्म इन्हें बताया जाए, इनके जो मसाइल है वो हल किए जाए, ये जो नंगी बर्बरियत है इसे खत्म किया जाए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि यानी इतना ज्यादा जद्दोजहद करने के बावजूद भी इस हवाले से कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। मुझे दुख होता है। ये गुर्बत भी झेल लेंगे लोग, ये भूख भी झेल लेंगे लोग, लेकिन उनके प्यारे उन्हें वापस लौटा दिए जाए, इस अजियत से तो उन्हें निकाला जाए। जी हर घर में हर ऐसे हजारों हमारी बच्चियां हैं जो क्वेटा तक उनको पहुंच नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं, आप उस अपनी इस छोटी सी उम्र में, अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस में आपने सदियों के किस्से देखे हैं। इतनी कर्ब और इतनी अजियत जो आप बयान कर रहे हो, शायद एक ही मैसेज जाती है कि मेरी आवाज़ लौट आती है सन्नाटे से टकरा कर। तो यही किस्सा है हम लोगों का। हर घर में एक हसीबा है, हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर स्कूल में एक हसीबा है। तो बात सवाल यही यहाँ आके ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है सवाल कि अभी बलूचिस्तान ऐसा क्यों है, बलूच इस तरह क्यों है। और बलूच अगर सवाल करे तो किससे करे? तो ये बलूचिस्तान जो मोहब्बतों का सरजमीन था, या कि ग्रीनरी था, यहाँ के जो लोगों की जो इज्तिमाई ज़िंदगियाँ थी, एक साथ जुड़े रहने का, एक साथ इकट्ठे प्यार मोहब्बत से रहने का। अंचुश मगुश्त के हसीबा तहना यक लोग ये किस्सा नहीं, हसीबा यक फैमिली ख़ानदान ये किस्सा नहीं, हसीबुल्ला तहना हबीबुल्ला जनक नहीं, हसीबुल्ला हर बलूच जनक के हर गेसे तहा ई किस्सा हंसते कि आई ब्रास मकासान उम्र जनक के आई जागा स्कूल कॉलेज यानी ज़माने गए कि आरा बड़े पुलिस नहीं तहना बड़े फौजी कैंप दीमा और बड़े इदारा नहीं दीमा और बड़े सियासी पार्टियां नहीं जलसा नहीं दीमा 10 घंटा 8 घंटा से 4 रोज वदार कनगो
وتی یکی پلے کارڈ سر نامہ ایر کنگو دیما وتی پریات برگیں حسیبہ ہمیں ہاتر بہادر رند کہ حسیبہ وتی گپا کنگائیں حسیبہ تہنا وتی گپا کنگنائیں حسیبہ درہاں ہی بلوچنی گپا کنگائیں ہما بلوچ کے چے گار بتگاں ہما بلوچ کے تنیسی تک آہانی کسا نام نگتا کہ کسا ذمہ واری نظرتا کہ ہم نامعلومی تو گشے کہ کجام رنگی اگوں بلوچستان تہا مردمہ برگو گار کنگائیں ہما ہانی درستانی نام اگی تو درستانی گپا کن تو وتی زندگی ببا داتا یا کہ وتی زندگی بزن قربانی داتا وتی ذاتی واہشتا نیشتا روچی ایک دروازگی یا روچی دریا نہ تہ نہ حسیبہ بلکہ میں دراہیں اما کسانو کی جنک گہار آہانی جو ہر وحدہ سطح کرزا اور میں گوں ہما بالادستے پارٹیاں پاکستان تا راج دوستی گپا کنا یا کہ بلوچستان گپا کنا یا ہوتی بلوچ ہستی گپا کنا گڑ آ باہریں بلوچنی ہما مذہنی جیڑا کیا قومی جیڑا باں یا راجی جیڑا باں کہ آ بلوچ زندمان دیما دیوال بستہ گوشتا تگا آہانی سرا کم از کم یک یونٹ سرا یک ٹک سرا یک پوائنٹ سرا یک جب بن تو ایشی سرا بغیر کمپرومائز کاری بکننتے